going thing. Hello guys, welcome back with another video. In this video I show the practical demo that how can you rename your current or existing SQL table using Laravel migration, right? So recently I worked in one task in company, so I have requirement to rename my existing table, but I want to achieve using Laravel migration. So migration is provide inbuilt facility, or you can say that Laravel having a inbuilt feature to rename or create table using Laravel commands. So Laravel migration handle this work related your database side table related work very easily. So in this video I show the demo. In that I will show you how can you achieve this functionality in your project, or you can easily rename your existing table using Laravel migration. So for that practical, I have already created one scratch Laravel project. You can see my env file, right? So in that env you can see you can see that I'm using Laravel, this database LaraDB, my localhost connection, my database name and password, and I'm already running this project in my localhost, right? So in that I just create a product showing the product list, right? We have two products. I have a form to create a brand like Samsung. I want to create Samsung, which is just smartphone, right? Save it. Okay, so go to create product. You can create a product, Note 3s 64 GB. Brand is Samsung, price is 13,000, quantity of 5. Save it. So here I have a link to show products. This blade file is showing the product list. You can see this URL. By using this URL I can display all the products available in my localhost. So I have one brand table, right? I can show you my database structure. This is my database. I show you. So हमारे पास ये Laravel का एक डेटाबेस है LaraDB के नेम से, उसके अंदर हमको ब्रांड टेबल मिल जाएगा, राइट? सो ब्रांड टेबल मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है. इसके अंदर हमारे पास ये दो ब्रांड है, राइट? मैं चाहता हूँ कि ये टेबल को मैं रीनेम करूँ यूजिंग माइग्रेशंस. सो लेट मी क्रिएट अ माइग्रेशन. php artisan स्पेस में कॉलन migration and give your file name. I will like to call rename underscore brand underscore table, right? So you can see this migration was created successfully in my local. Let me show you. Yes, migration, we have new migration, right? Just I created this file. अभी हमने ये कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ये माइग्रेशन क्रिएट किया है. तो इन दैट वी हैव टू राइट वन कमांड इन दिस अप फंक्शन. सो schema, right? colon rename. In that we pass two argument, old name colon new name, right? ओके. अब ये दो आर्ग्यूमेंट में कुछ है नहीं, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कोई वैल्यू असाइन करता हूँ. $old name इज इक्वल टू ओल्ड नेम क्या था हमारे टेबल का, कहाँ गया डेटाबेस, ये रहा, ब्रांड्स, राइट?
we have this brand table and we have these properties. Okay, so brands, right, and डॉलर न्यू नेम, ये वेरिएबल के अंदर नए टेबल का नाम हम लोग स्टोर करेंगे. सो सिंपली राइट योर न्यू नेम वट एवर यू वॉन्ट टू गिव और वट एवर यू वॉन्ट टू रीनेम. तो मैं चाहता हूँ कि इसको ब्रांड की जगह पे कंपनी बोलूँ. मैं ये टेबल का नेम मैं चाहता हूँ TBL_ कंपनी, राइट, क्योंकि वो टेबल में मैं चाहता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन आए वो कंपनी क्या है. आईफोन एक कंपनी है, सैमसंग एक कंपनी है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको ब्रांड टेबल से रीनेम करके, टेबल के अंदर देखोगे तो ब्रांड का टेबल है, तो उसको रीनेम करके TBL कंपनी कर दूँ मैं, राइट. स्पेलिंग मिस्टेक्स, लेट मी करेक्ट इट. यप, okay, migration looking good, ready to migrate it. So schema, basically this is the Laravel class which is handle your MySQL database related tasks. You can see the documentation of migration. So schema generally Laravel schema, it is a class provider database agnostic way to manipulate tables, right. जैसे कि मैंने बताया वो टेबल को मैनिपुलेट करने का और सारा काम, जो भी टेबल्स के रिलेटेड जो भी काम है वो हमारा माइग्रेशन हैंडल करेगा. तो इन दैट वी हैव टू रिटर्न स्कीमा. स्कीमास का क्लास के पास एक ये फंक्शन है रीनेम. रीनेम फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट आएगी आपकी, ओल्ड नेम और न्यू नेम, राइट. तो ओल्ड नेम में आपको आपके पुराने टेबल का नेम देना है, न्यू नेम के अंदर आपको नए टेबल का नेम देना है, एंड यू हैव टू जस्ट रन दिस माइग्रेशन. तो माइग्रेशन को रन करने के लिए हम लोग टाइप करेंगे PHP artisan migrate, right. By hitting this you can see migration run successfully. Okay, migrate successfully. एंड मेरा लोकल होस्ट भी चल रहा है. आई थिंक मैंने ये जो प्रोजेक्ट रन किया हुआ था PHP artisan serve कमांड से. तो एक मेरे पास दो टर्मिनल है, एक में मैं ये प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ ऑलरेडी और दूसरे पे मैंने माइग्रेशन रन की. फाइन. तो होपफुली ये टेबल का नेम चेंज हो जाना चाहिए. लेट मी शो यू. अभी तो यहाँ पे ब्रांड दिखा रहा है. लेट मी रिफ्रेश माय डेटाबेस. राइट क्लिक ऑन डेटाबेस, रिफ्रेश इट. यप, यू कैन सी जो ब्रांड टेबल था यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका नेम जो था वो रीनेम हो गया. TBL_ कंपनी, जो मैं चाहता था कि मेरा नाम चेंज हो जाए. ब्रांड मेरा पुराना नेम, मेरे को आर्ग्यूमेंट में नया नेम देना था, उसके अकॉर्डिंग मेरा नया नाम यहाँ पे सेट हो चुका है. और ये टेबल को डबल क्लिक करूँगा तो देखो डेटा भी वही एज इट इज़ ही है हमारा. अब इन दैट केस आपके पास दो चीज़ें. अगर आपको ऐसा है कि ये जब माइग्रेट रीनेम कर ले उसके बाद उसको डेटा जो अंदर है वो ड्रॉप कर दे, तो वो आप कर सकते हो यूजिंग ड्रॉप कमांड. ड्रॉप टेबल, राइट. तो अगर ड्रॉप का कमांड आप नहीं लिखोगे तो वो क्या करेगा, डेटा को, एग्जिस्टिंग डेटा को ड्रॉप नहीं करेगा. अब ये हो सकता है कि आप किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो पर्टिकुलर टेबल में हो सकता है 100, 200, 500 रिकॉर्ड पड़े हो और आप नहीं चाहते कि आपका डेटा लॉस हो सकता है वो डेटा इम्पोर्टेंट हो, केस सेंसिटिव हो या किसी क्लाइंट का हो. तो इन दैट वी वांट टू सिक्योर आवर डेटा, राइट. तो ये कर सकते हैं. जब तक आप उसको ड्रॉप के लिए बोलोगे नहीं, लारावेल ड्रॉप नहीं करेगा. तो इफ़ यू वांट टू ड्रॉप देन यू हैव टू राइट ड्रॉप कमांड, अदरवाइज इट्स फाइन. अगर आपको ऐसा है कि डेटा भी एज इट इज रहे तो क्या करना है, आपको यहाँ पे ड्रॉप कमांड नहीं लिखनी. डाउन फंक्शन को एज इट इज नल छोड़ दो. अब फंक्शन में आपको जो रीनेम करना है वो आर्ग्यूमेंट दे दो और माइग्रेशन को रन कर दो. तो ये क्या करेगा कि आपके टेबल को रीनेम करके दे देगा. और ये देखा आपने बहुत स्मूथली हो गया. बाकी अगर SQL से कमांड लगा के करने जाओगे तो ये बहुत टिपिकल काम है. और मेरे पास 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स भी है, तो मुझे थोड़ा टेंशन भी रहेगा कि भाई मेरा डेटा लॉस ना हो, क्योंकि प्रोजेक्ट जो चल रहा होता है उस टेबल पे काफ़ी सारे मॉड्यूल्स और डिपेंडेंट होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारा डेटा लॉस हो. तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो यू कैन अचीव दिस फंक्शनैलिटी वेरी इजीली इन लारावेल. सो ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ओके. और ऐसी मज़ेदार वीडियो आती रहेगी, वो जो फ्री में आ रही है आपके पास.
और एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन भी आपको नीचे मिल जाएगा, जो कि